ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? टेस्ट डिस्कशन नहीं लेना है क्या? चलो टेस्ट में डाउट्स बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टेस्ट में डाउट्स बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट? Any doubt in question number 1 to 10? Fifth, seventh and 10th। और कोई? 4th, 8th, 11 to 25 सेकेंड। पूरा पेपर ही डाउट है। 11 to 25 11 to 25 कोई और डाउट? और कोई डाउट है? नहीं है तो नहीं लिखो। कोई और डाउट है? हो गया? अरे हो गए, यही है, इतनी है।
पूरा पेपर ही डाउट है, चलो कोई मतलब नहीं है डाउट्स लिखने का। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज s इज इक्वल टू t क्यूब बाय 3 minus t square plus t. The velocity and displacement of the particle at the instant when its acceleration is 0. So velocity कैसे मिलेगी आपको? That is ds by dt. So differentiation मुझे लगता है सबको आता होगा. So 1 by 3 differentiation of t cube will be 3t square minus differentiation of t square will be 2t and differentiation of t will be 1. So this becomes t square minus 2t plus 1. And acceleration will be dv by dt, which will be t square का differentiation 2t minus 2t का differentiation 2. So you have to find displacement and velocity of particle when acceleration is 0. So acceleration 0 कब होगी? So if a is equal to 0, this means 2t minus 2 is equal to 0. So this means time is equal to 1 second. So at t is equal to 1 second, acceleration of particle is 0. So you have to find velocity and displacement of particle at that time. ठीक, so basically you have to find velocity at t is equal to 1 second. So that will be velocity का dependency कैसी है? t square minus 2t plus 1. So put t as 1. So 1 का square minus 2 into 1 plus 1. So that becomes 0. So velocity will be 0. And displacement at t is equal to 1. So put t is equal to 1 in the displacement equation. So this, so that will be 1 by 3 minus 1 plus displacement will be 1 by 3 meter. Clear? अब जो भी ऑप्शन है उसको मैच करो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है? Next question number second. Question number second is a particle is projected with a velocity u, making an angle theta with the horizontal. At any instant, its velocity v is at right angles to initial velocity u. Then v is. पीडीएफ चाहिएगा इन स्लाइड्स का? ठीक है, मैं सेंड करूंगा पीडीएफ. वेट, so next question number second. Question number second is a particle is projected with a velocity u, making an angle theta with the horizontal. At any instant, its velocity is at right angles to the initial velocity u. Then v is. ये कितनों का हुआ क्लास में? क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक, चलिए देखिए. So you are given that initial velocity u is making an angle theta with the horizontal. So path will be like this. So there is a velocity v that is making an angle 90 degree with the initial velocity. So यहीं पे बना के देख लिया करो. देखो जैसे मैंने उस दिन 82 डिग्री वाला क्वेश्चन बताया था. So if it is making an angle 90 degree with velocity, तो velocity will be something like this. So this will be v, and angle between u and v is 90 as given in the question. So on parallel shifting, this velocity will be somewhere here like this.
So this will be v vector and this is your u vector, and these both are perpendicular to each other, and u is making an angle theta with horizontal as mentioned in the question. So can I say we will make an angle 90 minus theta with horizontal? Yes or no? Yes. So क्या दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होंगे? मतलब इनिशियली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का विच इज u cos थीटा नो डाउट, और यहाँ पे जो v वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विच इज v cos 90 माइनस थीटा, दैट इज v sin थीटा। इंजीनियरिंग वाले हो तो तुमको इतना ट्रिग्नोमेट्री आता होगा। क्या ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होंगे? यस और नो? मतलब कैन आई से u cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा? क्वेश्चन खत्म। अब ये दिमाग लगा पाओगे तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सो v विल बी u cot थीटा, यही आपसे पूछा था उसने। सो वैल्यू ऑफ v विल बी u cot थीटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। द वाटर ड्रॉप्स falls at a regular interval from a top 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? So, let's say I have a tap and water is falling, water droplets are falling from this tap. So, when the फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड, और रेगुलर इंटरवल्स पे ड्रॉप आपकी नीचे जा रही है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट। थर्ड ड्रॉप इज जस्ट लीविंग द टैप। क्या सेकेंड ड्रॉप विल बी समवेयर बिटवीन फर्स्ट ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप? ऑब्वियसली। So you have to find the distance of second drop from the ground. So देखो ध्यान से। So first drop को कितना टाइम लगेगा नीचे तक ट्रेवल करने में? This distance is given as 5 meter. This is 5 meter distance. 5 meter ना? हाँ। So first drop को time taken by first drop to hit ground, क्या that will be, कैसे निकालेंगे? Can I use s is equal to ut plus half at square? s is -5 डाउनवर्ड, u इनिशियल स्पीड, ड्रॉप जब आपकी टैप से निकली थी तो इनिशियल स्पीड वो 0, हाफ a मोशन विल बी अंडर ग्रेविटी, सो a विल बी -10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस 2 इंटू 5 10, 10 से 10 कैंसिल, सो टाइम टेकन बाय अ सिंगल ड्रॉप विल बी 1 सेकेंड। क्या है, सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? तो हर एक ड्रॉप आपका ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लेगी? 1 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप इज जस्ट टचिंग द ग्राउंड एंड द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच किया, लेट्स से मोशन t0 से बिगिन हुआ आपका, सो फर्स्ट ड्रॉप यहां पे आपको 1 सेकेंड में दिखाई देगी। कैन आई से सेकेंड ड्रॉप को ट्रेवल करते करते 0.5 सेकेंड हो चुका है, बिकॉज सब रेगुलर इंटरवल में आपकी जा रही है। यस और नो? सही है? सही। सो कैन आई से द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ सेकेंड ड्रॉप इज 0.5 सेकेंड? जल्दी जल्दी बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So using second equation again, s is equal to ut plus half at square. I have to calculate s. U is obviously 0, so that becomes half of a that is -10 into t square, half का square that is 1/4, so 2 5 that is 1.25, माइनस आ रहा बिकॉज नीचे की तरफ है। अब मेरा एक क्वेश्चन है पूरी क्लास से, ये जो 1.25 आया है क्या ये ग्राउंड से डिस्टेंस है? यस और नो?
ये जो 1.25 मीटर आया है, क्या ये सेकंड ड्रॉप का ग्राउंड से डिस्टेंस है? यस और नो? नो। कहां से है? क्या ये एस हमने जो निकाला है यूजिंग सेकंड इक्वेशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड ड्रॉप? हाँ, तो ये टैप से डिस्टेंस होगा आपका 1.25, मतलब सेकंड ड्रॉप वुड बी समवेयर हियर. So this is the location of second drop, which is at a distance 1.25 meter from the tap. But आपको क्वेश्चन में from ground पूछा है, so this required distance will be 3.75 meter. बोलो, क्या है सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is a body starts from rest with constant acceleration a. Its velocity after n seconds is v. ठीक है. The displacement of body in last 2 seconds is. अब ध्यान से सुनना मेरी बात. ऐसे क्वेश्चंस करने के बहुत सारे वेज हैं आपके, तो जो भी आपको अच्छा लगे, मैं 2 तरीके बताता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो. क्या पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है? ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन में मेंशन्ड है आपका पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, so u will be 0, and after n seconds particle's velocity is v, and particle is moving with constant acceleration, let's say small a. क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये चीज क्या क्या दी हुई है, ये क्लियर है? बोलो. सो फर्स्ट इक्वेशन मैं यूज करूं, सो यू विल गेट v इज इक्वल टू u विच इज 0 प्लस जो मैंने माना है इनटू t विच इज गिवन एज n. सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैन बी गिवन एज v अपॉन n. मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को कोई भी डाउट होगा. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पे आते हैं. सो क्वेश्चन में आपसे पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन लास्ट सेकंड्स इज. सो फर्स्ट मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं वो है आपका कि सर आप टोटल n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या पार्टिकल ने कभी मोशन रिवर्स किया है? डायरेक्शन क्वेश्चन पढ़ के बताओ. क्या पार्टिकल ने n सेकंड्स में कभी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स किया है? नो, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो ऑब्वियसली इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज. ठीक है, सो कभी भी आपका पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता. डायरेक्शन चेंज कब करता है? जब इनिशियली पार्टिकल इज हैविंग सम वेलोसिटी एंड इट इज रिटार्डिंग, सो आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड देन इट कम्स बैक. पता है सारी चीजें? पता है ना? So I am finding the displacement of particle in n seconds, total displacement in n seconds. So that will be ut plus half at square. U initial speed was 0, so ut term will be 0. Half a is v by n into t square, that will be n square. So total displacement in n seconds will be vn by 2. क्या है सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब मुझे क्या पूछा है, ध्यान से सुनो. मुझे पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकेंड्स. सो टोटल n सेकेंड्स में से कैन आई सबट्रैक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n माइनस 2 सेकेंड्स? इन दोनों का डिफरेंस ही आपको लास्ट 2 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट देगा. यस और नो? सब लोग बोला करो यार. देखो, पहली बात मैं बता रहा हूं, मुझे क्लास में अगर पढ़ने आए हो तो सीरियस होके पढ़ो. नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्लास को पढ़ाने का, वापस पीयूष सर को दे दूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, पढ़ना है सीरियसली पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, ये भी बोल दो. ठीक है, कोई जरूरत नहीं है मुझे. पढ़ना है सीरियसली पढ़ो. तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n minus 2 seconds will be ut plus half at square. U is 0, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, सो दैट बिकम्स हाफ ऑफ a which is v by n into t square, which is n minus 2 का स्क्वायर. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे लग रहा होगा. सो दैट विल बी v by 2n into n square plus 4 minus 4n.
So on simplifying, that becomes Vn by 2 plus 2v by n माइनस 2v। ये मैंने v by 2n को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई किया। यहां तक क्लियर है? ऑल दीज टू इक्वेशंस, ये क्लियर है? यस। सो आपको पूछा था बताओ टोटल 2 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट है। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड्स, ऑब्वियसली लॉजिकल चीज है, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 2 सेकंड्स। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। So that will be Vn by 2 minus Vn by 2 cancel. So that becomes minus minus plus 2v and minus 2v by n. On taking 2v common, that becomes 1 minus 1 by n. So option जो भी है आप मैच कर सकते हैं। क्लियर है फर्स्ट मेथड? क्लियर? नाउ देयर इज अ सेकंड मेथड ऑल्सो। वो क्या है आप ध्यान से सुनो, वो क्या है? सो सेकंड मेथड इज कि सर आपने एक चीज पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, शायद सर ने पढ़ाया होगा, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 पढ़ाया। सो अगर आपको लास्ट 2 सेकेंड, अच्छा लास्ट 2 सेकेंड्स n में से होंगे कौन से? अगर टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल n सेकेंड्स दिया है क्वेश्चन में, लास्ट 2 सेकेंड्स कौन कौन से होंगे? क्या nth एंड n माइनस 1th? यस और नो? ये तो सबको कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है तो पूछो। सो मैं सेपरेटली दोनों को कैलकुलेट कर लेता हूं सर। nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और नीचे मैं कर लूंगा n माइनस 1th में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दूंगा, लास्ट 2 सेकंड्स का मिल जाएगा। बिल्कुल। सो दैट विल बी u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, वेयर n इज द टाइम, जिस tth मतलब nth टाइम में आपको निकालना है। So u is given as 0 because मैं इनिशियल से मोशन स्टडी कर रहा हूँ। a was a कितना आया था आपका v by n, so that becomes v by 2n into 2, n की जगह क्या पुट करूंगा जल्दी बोलो? To find the displacement in nth second मैं n की जगह क्या n ही पुट करूंगा? यस, ये तो मुझे लग रहा है सबको क्लियर होगा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। So in to find the displacement in n minus 1th second, that will be u is 0, a is obviously v by 2n, पूरे मोशन में कांस्टेंट है 2। अब n की जगह मुझे पुट करना पड़ेगा n minus 1, क्योंकि मैं n minus 1 की डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं। So that becomes v by 2n into 2n minus 2 minus 1, that becomes minus 3. That is your equation number 2. So net displacement of particle in last 2 seconds will be displacement in nth second plus displacement in n minus 1th second. ठीक, so that becomes v by 2n common, 2n minus 1 plus 2n minus 3 ऐड कर रहे हैं ना, so that becomes 4n minus 4. So taking 4 common and cancelling by 2, that becomes 2v by n into n minus 1. शायद यही आंसर आया था फर्स्ट मेथड से भी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। A particle moves with constant speed v along a regular hexagon a b c d e f in same order, i.e. a to b, b to c, c to d, d to e, e to f, मतलब something like this। रेगुलर हेक्सागन ये सबको पता होगा, वैसे ऐसा कुछ शेप होता है हेक्सागन का, having 6 sides, पता है सबको? ठीक, लेट से इसका नाम दे देते, क्वेश्चन में दिया है वैसे ए बी सी डी ई एंड दिस इज एफ। ठीक, so the magnitude of average velocity from a to c is, and it is moving with constant speed v and side is given as let's say a, वैसे यूज मुझे नहीं लगता उसका होगा, चलो लेट्स से a। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यू हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम a to c। क्या एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम? यस, अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछता है दैट विल बी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो आई हैव टू कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या दैट विल बी ए बी प्लस बी सी, मतलब 2a? नो,
क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी ए बी प्लस बी सी? नो, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी ए सी. टोटल डिस्टेंस विल बी ए बी प्लस बी सी ना. हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. सो दैट विल बी ए सी वेक्टर. वेक्टर बिल्कुल लगेगा, लगाएंगे ना अभी. डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लेट्स से कैपिटल टी. सो ए सी वेक्टर. और अब आप ये लॉज वगैरह में, ट्रायंगल लॉ में आपको दिख ही रहा होगा, दैट विल बी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर. मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा. अपॉन कैपिटल टी, दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म. सो मुझे तो मैग्नीट्यूड निकालना है. सो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी, सर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दो, मतलब ए बी प्लस बी सी का रिजल्टेंट निकाल देते हैं. अब ध्यान से सुनना, ए बी प्लस बी सी का रिजल्टेंट कैसे आएगा समझना. दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए सी वेक्टर. मैं यहाँ पे आपके लिए अलग से बना रहा हूँ. दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए सी वेक्टर, सॉरी बी सी वेक्टर. और इन दोनों का रिजल्टेंट आपको देगा ए सी वेक्टर, जो मुझे निकालना है, जिसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है. सो सर आप क्या करो, ए बी वेक्टर और बी सी का रिजल्टेंट निकाल दो. फॉर्मूला हमको आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, ए बी और बी सी के बीच में, आपका जो एंगल बनेगा वो यहां बनेगा, ये बनेगा. क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आपका फॉर्म होगा वो ये वाला होगा जो मैंने डायग्राम में बनाया, ये? नो. क्या इन दोनों के बीच में आपका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो इधर होगा? यस. सर ने सिखाया होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. यहाँ पे एक का हेड एक का टेल मिल रहा है, तो यहाँ पे एंगल नहीं बनता है. या तो दोनों की टेल मिलनी चाहिए, मतलब दोनों आपके डाइवर्जिंग होने चाहिए, या दोनों के हेड मिलने चाहिए, मतलब दोनों कन्वर्ज होने चाहिए. वहां पे एंगल देखना होता है आपको. सो बाय ज्योमेट्री मुझे लगता है ये एंगल सब लोग निकाल सकते हैं. दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. इसमें कोई डाउट है किसी को? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा. प्योर ज्योमेट्री है, पता है ना ये चीज. दिस एंगल विल बी 60. ठीक. सो रिजल्टेंट ऑफ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली ए स्क्वायर, साइड मैंने ए मानी है, प्लस बी सी का स्क्वायर विच इज अगेन ए स्क्वायर, प्लस 2ab bc विच इज ए स्क्वायर इंटू cos थीटा वेयर एंगल इज 60. सो cos 60 इज हाफ. सो न्यूमरेटर विल बी अंडर रूट 3a अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम विल बी, डिस्टेंस से निकाल लो सर, कितना ए से सी तक कितना टाइम लगा उसको, ए से बी तक जो लगा, बी से सी तक जो लगा, और स्पीड कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, v. सो टाइम कितना होगा आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड. सो क्या टोटल टाइम टेकन विल बी 2a बाय v? यस और नो, इतना मुझे बताओ. ये क्लियर हुआ? टोटल टाइम मैंने कैसे लिखा, 2a बाय v. यस. So on solving, numerator becomes root 3a square, so that will be root 3a. v आप ऊपर ले जाओ, divided by 2a. So this becomes root 3v by 2. So this is magnitude of average velocity. क्या सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या सबको क्लियर? यस. क्वेश्चन नंबर 6. The displacement time graph of a moving particle is shown in the diagram. The instantaneous velocity, अच्छा आपको एक चीज पता होगी, ये तो 1D में आप पढ़ चुके हो. वेलोसिटी जो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस, दैट इज स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ. पता है सबको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पता है? सो आपसे पूछिए द वेलोसिटी इज नेगेटिव एट, तो स्लोप देख लो आप किधर नेगेटिव है. स्लोप किधर नेगेटिव होगा? जिधर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो आपका एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा. ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो, ये पता है ना सबको. स्लोप नेगेटिव कब होता है? जब आपका वो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तब टेंजेंट आपको नेगेटिव वैल्यू देता है. पता है सबको? अच्छा आपको ये भी पता होगा फिर मैथ वाले लोगों की, आपका जो एंगल आपको देखना होता है कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, वो किस डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ देखना होता है. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस? जल्दी बोलिए. आपको जो एंगल देखना है कि टेंजेंट कौन सा एंगल बना रहा है,
एक्यूट या ऑब्ट्यूज, वो आपको कौन सी डायरेक्शन के साथ देखना होता है, ये पता है या नहीं पता है? पता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक, चलो अपने दिमाग में सोल्व करो। क्या सी पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल फॉर्म करता हुआ दिख रहा है आपको? यस और नो? यस। और अगर वो एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा तो टेंजेंट थीटा, थीटा इज एक्यूट, सो टेंजेंट थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल एक्यूट है, एक्यूट मतलब लेस देन 90, सो टेंजेंट जो होगा आपका वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज पॉजिटिव। सो सी तो आपका गलत हो गया। डी, क्या डी पे आपका स्लोप 0 दिख रहा है सबको? बिकॉज टेंजेंट इज मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। बोलो, दिख रहा है? ई, ई पे आपको जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, ये क्या ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता हुआ दिख रहा है? और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेना, ध्यान दो, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो स्लोप विल बी नेगेटिव, बिकॉज टेंजेंट जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल में नेगेटिव वैल्यू देता है। सो ऑप्शन विल बी ई। अब ई देख लो कौन से में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्लियर? 6 क्लियर सबको? ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। A ball is thrown upwards. It takes 4 seconds to reach back to ground. Find its initial velocity. बहुत easy है. Let's say particle is projected with initial speed, initial velocity u. हाईएस्ट तक जाएगा, वहां से वापस आएगा, तो आपसे पूछा है बताओ टोटल टाइम अगर 4 है तो कहना इसे हाईएस्ट तक जाने में आपका 2 सेकेंड्स लगेगा? यस और नो? यस। और मुझे पता है ये रिजल्ट सबको याद होगा कि हाईएस्ट तक जाने में जो टाइम होता है दैट इज u by g according to first equation of kinematics. So u can be given as time into g. So time is 2, g is, ऑप्शन से पता चल रहा है 10 लिया है शायद उसने, so u will be 20. बोलो क्लियर? क्लियर? ही आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे केसेस में होता है 2u by g, उससे भी आप कर सकते थे, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन 1 + 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ये आपके लिए बच्चों वाली चीज होगी जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में 1 साल बाद, ठीक है, तब ये बहुत बच्चों वाली चीज होंगी आपके लिए। अभी के लिए मैं बता देता हूं कैसे इसको करना है, ध्यान से देखो। So this becomes 1 by cos square x, that is obviously secant square x, इतना ट्रिग्नोमेट्री सबको आता होगा, प्लस 2 sin x अपॉन cos square x, उसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, sin x by cos x into 1 by cos x। बोलो, ऐसा लिख सकता हूं? यस और नो? ऐसा क्यों लिखा अभी आपको पता चलेगा, ऐसा लिख सकता हूं ना। So, तो दिस बिकम्स secant square x plus 2 sin by cos that is tan x and 1 by cos that is sec x into dx। आई होप इतना रीअरेंजमेंट सबको समझ में आया होगा। अब देखो, तुम्हें एक चीज पता है, सर ने डिफरेंशिएशन में बेसिक में पढ़ाया होगा कि टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन secant square x होता है, पता है ये चीज? डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट x इज secant square x, सो secant square x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका? tan x, ठीक है, प्लस 2 tan x secant x, इसका पता है सबको? 2 तो एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, आपको एक चीज और बताई होगी सर ने, secant x का डिफरेंशिएशन पढ़ाया आपको? फर्स्ट स्टेप नहीं समझा? डिवाइड किया दोनों, cos square x को दोनों के डिवाइड में लेके जाओ, सो 1 by cos square x becomes secant square x प्लस 2 sin x by cos square x को मैंने ऐसे लिखा, अब उसको sin x by cos x को tan x लिखा, 1 by cos x को secant x लिखा। अरे क्लियर है? अच्छा, सर ने तुम्हें ये पढ़ाया d by dx ऑफ secant x, secant x का डिफरेंशिएशन ये सर ने पढ़ाया होगा, ये होता है secant x tan x, पढ़ाया? तो अगर secant x का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? secant x, तो मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, उल्टा होता है इंटीग्रेशन, सो tan x secant x का इंटीग्रेशन secant x। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो साथ में कांस्टेंट भी आता है जो लेटर ऑन आप मैथ में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए मान लो सर ने बताया होगा ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक।
सो आंसर इज 10x प्लस 2 sec x प्लस c। अब जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। Question number 9th is which of the following physical quantities has neither dimensions nor unit? एंगल, क्या एंगल की डायमेंशंस होती हैं? क्या एंगल की डायमेंशंस होती हैं? नो, पर यूनिट होती है एंगल की। क्या रेडियन होती है? रेडियन, यस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये तो आपने उन 7 फंडामेंटल में पढ़ा होगा, तो ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका एनएलएम में, ठीक है। काइनेमेटिक्स के बाद एक चैप्टर आता है एनएलएम, उसमें हम पढ़ेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। वैसे सर ने आपको यूनिट डायमेंशन में पढ़ा दिया होगा। सो इट हैज नो यूनिट एंड ऑल्सो नो डायमेंशन, सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस बताया ना सर ने। अच्छा, अगर नहीं भी बताया है सर ने तो बाकी तो पता है ना आपको। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये उन 7 फंडामेंटल में आती है, तो ऑब्वियसली यूनिट है इसकी। एंगल, इसकी भी यूनिट होती है आपकी, तो बचा कौन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लास्ट टेस्ट में भी आया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। इफ द स्पीड ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर। इसमें कोई डाउट है? नहीं तो टाइम लगेगा इसमें। इसमें किसी को डाउट है तभी मैं बताऊंगा, नहीं है? ठीक, ये आपको सर ने पढ़ाया होगा बेसिक। मैं बता देता हूं करना क्या है। जिसकी डिपेंडेंसी निकालनी है उसको एलएचएस में रखो, मतलब कैपिटल जी को आप एलएचएस में रखो। जिसके ऊपर डिपेंडेंसी निकालनी है उसको आरएचएस में रखो। तो सी, जी और पी के ऊपर आपको डिपेंडेंसी निकालनी है। तो सी की पावर लेट से एक्स मान लो, जी की पावर वाई मान लो, पी की पावर जेड मान लो। दोनों साइड डायमेंशंस पुट करो, ठीक है। मतलब एलएचएस में कैपिटल जी की डायमेंशन पुट करो, आरएचएस में सी, जी और पी की डायमेंशन पुट करो जो सर ने आपको लिखवाई होगी। दोनों साइड मास का पावर कंपेयर करो, एल का पावर कंपेयर करो और टी का पावर कंपेयर करो। यू विल गेट 3 इक्वेशंस इन एक्स, वाई एंड जेड मिलेगी। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी पता होगा आपको। आपको 3 इक्वेशंस मिलती है। नो स्क्रीन, आवाज स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? आ गई विजिबल, ठीक। जिनको नहीं दिख रही है वो एक बार रिफ्रेश करो। अच्छा बताओ, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है कि एलएचएस और आरएचएस को जब आप कंपेयर करेंगे तो मास की पावर से एक इक्वेशन मिलेगी, एल की पावर से एक इक्वेशन मिलेगी एंड टी की पावर से एक इक्वेशन मिलेगी। सो ओवरऑल यू विल गेट 3 इक्वेशंस इन एक्स, वाई, जेड। अब आपके उसके बाद आपको बेसिक मैथ लगाना है आपका। तीनों इक्वेशंस को सोल्व करो, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। सो आई होप 10th में डाउट नहीं होगा, नहीं तो टाइम लगेगा इसमें। नहीं बताना ना किसी को, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। 11th, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 30, 60 एंड p न्यूटन्स। ये तो 3 हो गए। टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 30, 60 एंड p। ये मिसप्रिंट है मुझे लग रहा है, शायद 3 होने चाहिए। मतलब 3 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 30, 60 एंड p आर एक्टिंग at a point and they are in equilibrium if the angle between first two is 60, the value of p is। देखो ध्यान से, मैं ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स से दिस इज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30, this is a force of magnitude 60 and let's say this is a force of magnitude p। एंगल बिटवीन फर्स्ट टू मतलब 30 और 60 न्यूटन के बीच में आपका जो एंगल है दीज टू फोर्सेस के बीच में, उनके बीच में है 60 डिग्री। तो आपसे किसके बीच में पूछा है? द वैल्यू ऑफ p इज, ठीक, p का वैल्यू आपसे पूछा गया है। अच्छा, आपने एक थ्योरम पढ़ी है अगर आपको याद हो, लेमीज थ्योरम। लेमीज से आंसर आएगा क्या इसका? लेमीज से आंसर शायद आएगा, देख लेते हैं। चलो, लेट्स से दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2, ठीक। संगीत किसके घर में बज रहा है?
चलिए देखिए, सो लेमिस थ्योरम मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है आपको। तो क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड विच इज 60 अपॉन साइन ऑफ उसके ऑपोजिट जो एंगल दिखेगा दैट इज θ2, दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन साइन ऑफ उसके ऑपोजिट जो एंगल दिखेगा दैट इज ऑब्वियसली θ1। और ये इक्वल होगा किसके, थर्ड फोर्स के मैग्नीट्यूड विच इज P और साइन ऑफ उसके ऑपोजिट जो एंगल आपको दिख रहा है दैट इज 60। दिस इज योर लेमिस थ्योरम। बोले पता है सबको, लेमिस थ्योरम पता है? ठीक, अब आगे आगे कर लोगे। पर यहां से आंसर आ कहां से रहा है? अच्छा, बहुत सोल्व करना पड़ेगा यहाँ से। तो 30 ये गया 2, सो एक इक्वेशन आपको मिलेगी 2 साइन θ1 इज इक्वल टू साइन θ2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेकंड थर्ड को एक साथ लेके जाएंगे, सो यू विल गेट 30 अपॉन साइन θ1 दैट इज इक्वल टू P अपॉन साइन 60 विच इज √3/2। सो 2 से हो गया आपका 15, so P will be 15√3 upon sin θ1। This is your equation number 2। और 1 और 3 को आपस में करेंगे इक्वेट, तो you will get 60 upon sin θ2 that will be P upon sin 60 which is √3/2। so 2 से गया आपका 30, so P will be 30√3 upon sin θ2। पर यहां से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहां से सोल्व कैसे हो रहा है? यहां से P की वैल्यू तो आप निकाल ही नहीं सकते। और कुछ दिया है क्या, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम इफ द एंगल। अच्छा हाँ, एक रिलेशन और मिलेगा, θ1 प्लस θ2 दैट इज इक्वल टू 300। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री लगेगी आपकी, कर लोगे आगे या करवाऊं पूरा? इसके आगे कर लोगे? कर लेंगे, ठीक, करवाना है किसी को तो बता देना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is the graph below describes the motion of a ball rebounding from a horizontal surface being released from a point above the surface. The quantity represented on the y-axis is the ball's क्या, मतलब बॉल का क्या है आपका। ठीक है, सो देखो अब ध्यान से, टाइम के साथ वेरिएशन है, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। सो इनिशियली t0 पे आपका जो वो y क्वांटिटी है वो 0 है, वो y क्या है वही आपको बताना है। और ऊपर से ड्रॉप किया आपने, अच्छा क्या वाई स्पीड भी हो सकता है, क्योंकि ड्रॉप किया तो स्पीड भी 0 हो सकती है, यस और नो? इक्विलिब्रियम मतलब वो पार्टिकल आपका कहीं नहीं जा रहा है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, मतलब सबका वेक्टर सम जो होगा वो होगा 0, ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है, जल्दी बोलो, क्या वाई आपका वेलोसिटी भी हो सकता है? क्योंकि इनिशियली आपको ड्रॉप किया है, तो एट t0 आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। सो वाई कैन बी वेलोसिटी ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, y कॉन्टिन्यूअसली आपका, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वेलोसिटी होता, क्या v और t में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिखना चाहिए था आपको? बिकॉज आप तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, और रेस्ट से रिलीज हुआ तो u विल बी 0, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब y इज इक्वल टू mx टाइप बन गया आपका। तो ग्राफ v और t में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, हाँ या ना? ऐसा सही है। पर क्या ग्राफ आपको पैराबोलिक दिख रहा है? बोलिए, क्या ग्राफ आपको पैराबोलिक दिख रहा है? और पैराबोलिक अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में बनेगा आपका, बिकॉज यू विल यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 0, सो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, एक साइड डिग्री 1 एक साइड डिग्री 2, ग्राफ विल बी पैराबोला। तो क्या आगे बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा? जल्दी बोलिए यस और नो। यस, अच्छा मुझे कोई एक चीज बताएगा, एक्सिलरेशन का ग्राफ क्या होगा पूरी जर्नी में? जल्दी बोलिए, एक्सिलरेशन का ग्राफ क्या होगा पूरी जर्नी में? मतलब a वर्सेस t का अगर आपसे ग्राफ पूछता, पैरेलल टू x, वेरी गुड, बिकॉज पूरी जर्नी में एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट,
पूरी जर्नी में, वो तो माइनस जी है सर, वो तो ऐसा हो जाएगा आपका। बोलो ये चीज क्लियर है? थोड़ा दिमाग लगाया करो, जल्दी बोलिए क्या ये चीज क्लियर है? कोई डाउट है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट ही क्यों आया? ये कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो जल्दी बोल दिया करो कि सर ये डिस्प्लेसमेंट ही क्यों आया, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। 13th, for an object thrown at angle 45 degree to horizontal, the maximum height and horizontal range are related as, होना चाहिए था। कितनों का हुआ है 13? क्वेश्चन नंबर 13 कितनों का हुआ? हो गया? चलिए देखिए, तो कितने एंगल पे फेंका गया? 45 डिग्री पे। तो एच और आर को रिलेट करने को बोला है, सो एच विल बी ऑब्वियसली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल दैट इज गिवन एज 45 डिग्री अपॉन जी, अपॉन 2g होता है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाँ, so that will be u square sin 45 is 1 by root 2, that square becomes 1 by 2, so that will be 1 by 4g. So this is equation 1, and range will be u square sin 2 theta, that becomes sin 90 divided by g, so that is u square by g, equation number 2. So obviously h is equal to capital R by 4. Bolo clear? So R is equal to 4h. 13th clear? Next question number 14th. Two bodies begin a free fall from rest from the same height 2 seconds apart. How long after the first body begins to fall the two bodies will be 40 meter apart? अच्छा तुम्हें एक चीज पता है, इसको सोल्व करने के दो दो तरीके हैं, ठीक है? फिजिक्स की खूबसूरती देखना है यहाँ पे, मतलब तुम लोगों ने जिससे किया होगा पहले मैं वो बताता हूँ, और जितना मुझे लगता है ऑब्वियसली सबने उसी से ही किया होगा। लेट्स से एक ही बिल्डिंग के टॉप से दोनों को आपने छोड़ा h हाइट से, ठीक? सो ये है आपका फर्स्ट बॉडी जिसको आपने t0 पे ही छोड़ दिया, और ये है आपकी सेकेंड बॉडी जिसको आपने कितने पे छोड़ा? 2 सेकेंड्स के बाद आपने रिलीज किया, ठीक है? दोनों को रिलीज किया, फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट क्वेश्चन में मेंशन है। तो आपसे पूछा है पहली बॉडी के कितने छोड़ने के कितने टाइम के बाद दोनों में सेपरेशन आपको 40 मीटर दिखाई देने वाली है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। लेट से फर्स्ट बॉडी को स्टडी करते हैं सबसे पहले। लेट से इसने टी टाइम लिया और इसने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट किया वो एस किया और टाइम लिया इसने टी, ये मैंने मान लिया लेट से, और ये यहां कहीं पहुंच गया, यहां कहीं, ठीक? सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन कैन आई राइट s, this s displacement of this first particle as ut which is 0 obviously, half a which is minus g into t, वो मैंने खुद से माना t टाइम लगा, so that is t square. This is your equation number 1. और माइनस साइन मैंने क्यों लिया? पूरा डायरेक्शन के साथ मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक? ये क्लियर है सबको इक्वेशन नंबर 1? मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है सबको? यस? अच्छा, इक्वेशन 2 सेकंड बॉडी से मिलेगी हमको। अब ध्यान से सुनना, अगर बॉडी 1 ने s डिस्प्लेसमेंट शो किया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉडी 2 क्या थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए? जल्दी बोलो, क्या थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए? मतलब ये सेपरेशन आपको दोनों में दिखना चाहिए 40 मीटर, क्या यही क्वेश्चन बोल रहा है? यस? चलो साइन के बिना ही सोल्व कर लेते हैं, डिस्टेंस ही लेके सोल्व कर लेते हैं, तो इसको प्लस ही लेते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सबको पता, साइन से सिर्फ आपको डायरेक्शन पता चलती है, क्या फर्क पड़ता है उससे? सो कैन आई से द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल इज s minus 40? हाँ या ना? जल्दी बोलो, तभी तो दोनों में सेपरेशन 40 होगा। मतलब ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने शो किया दैट विल बी s minus 40. यस? So that is ut which is 0, रेस्ट से रिलीज हुआ, हाफ a which is g, बिना साइन के ही कर रहा हूं मैं, t। मेरे को पूरी क्लास में कोई ये बता दे क्या इसके लिए भी टाइम t लेना पड़ेगा या t minus 2 लेना होगा?
t-2। वेरी गुड। सोचो ना, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट बॉडी को t टाइम हुआ है ट्रेवल करते हुए, तो सेकंड को कितना हुआ है t-2, क्योंकि वो 2 सेकंड्स बाद में रिलीज हुई है। तो ठीक, अब मुझे t निकालना है, तो s की वैल्यू कितनी डाल दो, हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन 1 से डाल दो इक्वेशन 2 में। सो इक्वेशन 2 बिकम्स हाफ gt स्क्वायर माइनस 4t, दैट इज इक्वल टू हाफ g इंटू t-2 का होल स्क्वायर। g को 10 डाल दो, सो यू विल गेट 5t स्क्वायर माइनस 4t, दैट इज इक्वल टू 5, और अंदर स्क्वायर सोल्व करो, बचपन में पढ़ा होगा आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, so this will be 5t square minus 4t, that is equal to 5t square plus 20 minus 20t, so 5t square cancel, so you will get 20t is equal to 60, so t is equal to 3 seconds। बोलो क्या सबको क्लियर है? और t मैंने क्या माना था, फर्स्ट ने कितना टाइम लिया, तो वही पूछा है क्वेश्चन। तो 3 सेकेंड्स के बाद दोनों में सेपरेशन 40 दिखाई देगी। बोलो क्लियर? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, सबने इसी से सोल्व किया था? सबने इसी से सोल्व किया था? अब मैं तुम्हें एक मजेदार चीज बताता हूँ, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, एक लाइन में आंसर आएगा रिलेटिव मोशन से। वैसे मैंने ऑल्दो पढ़ाया नहीं है, बताऊंगा थोड़ा सा, अगर डरो ना, वैसे डरने वाला नहीं है, थोड़ा सा बताता हूँ, देखना कितना एक लाइन में आंसर आएगा। रिलेटिव मोशन में बेसिकली क्या किया जाता है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के मोशन को देखा जाता है। ठीक, तो दोनों की क्या इनिशियल स्पीड 0 है? बिल्कुल सर। तो क्या एक के रिस्पेक्ट में जब आप दूसरे की देखेंगे, यू रिलेटिव इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, क्या वो भी 0 दिखाई देगी? क्योंकि दोनों की इंडिविजुअली 0 है। बोलो हाँ या ना? यस। चलो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसमें और चीज भी लगेगी, बाद में करवाऊंगा। ठीक है, आधे लोग बोलेंगे क्या करवा दिया सर ने, पर ये क्वेश्चन मुझे याद दिलाना, जब रिलेटिव मैं पढ़ाऊंगा तब मुझे याद दिलाना, तब मैं देखो यही क्वेश्चन एक लाइन में कैसे होगा। चलो अभी के लिए उसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा? क्या v और a वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ या ना? ये तो आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ही देख सकते हैं। a वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन नीचे होती है आपकी, g होती है जो, और u वेक्टर कुछ तो थीटा एंगल पे भेजते हैं हम, क्या दोनों में एंगल 90 होता है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 90 होता है? यस और नो? अरे जल्दी बोलिए। होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 90 होता है। कहाँ होता है 90? ये प्रोजेक्ट करो आप पार्टिकल को, ये कुछ ऐसा बात करेगा, ठीक, ये एंगल आपका थीटा बनेगा, कहीं पे भी मान लो यहाँ पे है पार्टिकल, क्या वेलोसिटी ऐसी होगी? बिल्कुल। और एक्सेलरेशन जो होगी वो जी ऐसी होगी, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है क्या? कहाँ है 90? तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ए गलत है, समझ में आया सबको? ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ये समझ में आया? अच्छा, पूरे मोशन में एक ऐसी जगह है जहां पे दोनों में एंगल 90 होता है, ये पता है? कोई बता सकता है कौन सी जगह है? एक जगह होता है, पर हमेशा होता है ये नहीं पता है, ये होता ही नहीं है, मतलब एक जगह होता है, हाँ, एच मैक्स पे, क्योंकि एच मैक्स में वेलोसिटी आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी और आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे दिखाई देगी, तो एक ही जगह ना, बाकी जगह तो नहीं है। अच्छा, सेकंड, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0 एट इट्स मैक्सिमम हाइट, क्या ये भी गलत है? तुम खुद ही बताओ, यस और नो, जल्दी। क्या सेकंड भी रॉन्ग स्टेटमेंट है? यस, क्योंकि हाईएस्ट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल तो बचता है ना। थर्ड, इट्स वेलोसिटी मेक्स 0 एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, ये सही है। बोलो हाँ या ना? सी सही है, समझ में आया? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, खत्म। कोई करेक्शन है किसी, बता देना। अभी मैंने रिजल्ट नहीं देखा, अभी देखूंगा, सर ने भेजा था कल, अभी देखो। क्वेश्चन नंबर 16, the equation of motion of a projectile are given by x is equal to 3060 and y is equal to 48t
हाँ मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ये मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा ना इसकी पीडीएफ, वहां देख लेना। अभी क्या नोट कर रहे हो, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा आदित्य। सो y will be 48t minus 4.9t square। अच्छा, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितनों का हुआ है ये क्लास में? अब आधे पता क्या बोलेंगे, सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं है। एक का हुआ, और दो, तीन। अगर तुम क्लास में ध्यान से सीरियसली पढ़े होगे, चीजें अटेंड की होगी, तो आपसे क्वेश्चन हुआ होगा, अदरवाइज नहीं हुआ होगा। 5-6 लोगों का हुआ, उतने ही लोग सीरियस होके पढ़ते होगे तुम लोग, बाकी नहीं पढ़ते होगे। ये कुछ नया नहीं है। आधे बोलेंगे सर आपने तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखवाई थी वो y और x में लिखवाई थी, यहाँ तो मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है, x और t में और y और t में इक्वेशन दिख रहे हैं, तो y और x में निकाल लो ना भाई, ये जरूरत ही नहीं है उसकी। याद करो, अगर आपको x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या वो होती थी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ a वो जीरो हो जाता था क्योंकि x की एक्सेलरेशन जीरो होती है, तो ये आपको दिखता था u cos थीटा इंटू टी। ये याद है, ये सब लिखवाया है नोटबुक में, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास में बहुत अटेंटिव होके समझा करो, नहीं समझ में आ रहा है पूछा करो। तो कंपेयर करो, अब देखो ध्यान से, क्या ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट u cos थीटा एज 36, ये समझा कि नहीं पहले ये बताओ जल्दी, बाकी बातें बाद में। क्या u cos थीटा 36 आपको समझा? ठीक। अब y वाला कंपेयर कर लो, क्योंकि y की टाइम पे क्या डिपेंडेंसी होती है, y मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। सर फिर से यूज कर लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कर लो यूज। तो s क्या बन जाएगा y, क्योंकि मैं y में यूज कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। ut, u कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, जो मैं क्या लिखता हूँ u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ए वाई माइनस जी होता है तो हाफ ऑफ माइनस जी, वो माइनस 4.9 दिखेगा इंटू टी स्क्वायर। देखो सेकेंड टर्म सबको सेम दिख रही होगी। तो क्या ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट u sin थीटा इज 48? जल्दी बोलिए यस और नो। यहां तक सबको समझा? अब आपसे पूछा क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या इन दोनों को डिवाइड करके मिल जाएगा? बिल्कुल सर, यू कैंसिल हो जाएगा इनिशियल स्पीड। सो sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, दैट विल बी 48 बाय 36 व्हिच इज 4/3, और 4/3 टेंजेंट कितने में होता है सबको पता होना चाहिए, 53 डिग्री। पर अगर आप ध्यान से ऑप्शंस देखें, एक भी ऑप्शन में tan इनवर्स नहीं है, तो चेंज कर लोगे। अगर आपका tan थीटा 4/3 आया, इसका मतलब लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज 4, दिस इज 3, सो पाइथागोरस से दिस इज 5, तो sin थीटा कितना होगा 4/5, सो एंगल विल बी sin इनवर्स में ऑप्शंस है, सो sin इनवर्स 4/5। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि मैथ वाले हो तुम लोग। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बहुत टाइम लग गया, मुझे नहीं लग रहा था इतना टाइम लगेगा। 17. The engine of a train passes an electric pole with a speed u at the last compartment of the train. अच्छा, and the last compartment of the train crosses the same pole with velocity v. Then the velocity with which the midpoint of the train passes the pole is. क्या पूरी ट्रेन की एक्सेलरेशन सेम है? Yes or no? जल्दी यस। अच्छा, लेट्स से दैट एक्सेलरेशन इज ए और ट्रेन की लेंथ है लेट्स से एल। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो वापस। एक सर्टेन पोल था आपका, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ पोल, ठीक, ऐसा इसको इमेजिन करना 3D में, ये 2D में बना है। तो ट्रेन इसको क्रॉस करके जा रही है, जब इंजन क्रॉस करके जा रहा है तो u स्पीड से जा रहा है, और जब आपका लास्ट कंपार्टमेंट क्रॉस करके जा रहा है तो वो v स्पीड से जा रहा है। सो कैन आई यूज दिस इक्वेशन, v square is equal to u square plus 2ass, that will be length of the train, और a मैंने एक्सेलरेशन खुद से मान ली। कैन आई यूज दिस इक्वेशन? बोलिए यस। अच्छा, पर मुझसे नहीं पूछा, मुझसे पूछा देन द वेलोसिटी विद विच द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासिस द पोल, लेट्स से वो v डैश से आपका पास करता है, और इंजन कितने से कर रहा था v से, मिड पॉइंट कितने से किया v डैश से। तो कैन आई यूज दिस इक्वेशन, v डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर
जो जनरली होता है, और इंजन की होगी वो, तो दैट विल बी वी स्क्वायर प्लस 2a सेम रहेगा, s आपका बन जाएगा l/2। क्या सेकेंड इक्वेशन ये सही है? यस और नो? बोलिए, क्या सेकेंड इक्वेशन ये क्लियर है? यस। सो v डैश आपको निकालना है, तो आपको कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या करो, आप इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। दैट विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू l, ऐसा बना लो। और इक्वेशन 2 आपकी क्या बन जाएगी? v डैश का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2a दैट इज l/2, और 2 ले जाओ तो ऐसा दिखेगा आपको, दोनों का डिवाइड हो तो 2a l रेशो में आपका कैंसिल हो जाएगा। इतना मैथ सबको आता होगा। सो यू विल गेट v स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2v डैश का स्क्वायर माइनस 2v का स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ हुई है। अच्छा, इंजन u स्पीड से क्रॉस कर रहा है आपका, सॉरी। सो इंजन अगर u स्पीड से क्रॉस कर रहा है, सो मिड पॉइंट v डैश से कर रहा है, इंजन जो है वो u से कर रहा है, सो दिस विल बी u स्क्वायर ना। बोले क्लियर हो? मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये क्लियर हुआ? v की जगह u होगा वो। अरे बोलिए। सो दिस विल बी 2u का स्क्वायर। सो मुझे v डैश फाइंड करना है, सो आ गया आंसर। सो 2v डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर, और माइनस 2u स्क्वायर इसको बना देगा प्लस u स्क्वायर। बस खत्म सवाल। सो v डैश विल बी अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्या सबको क्लियर? ऑप्शन डी। जल्दी बोले, जल्दी। क्या सबको क्लियर? Next question number 18th, 19th and 20. 18th. A particle starts from rest and travels a distance s with uniform acceleration. Then it travels a distance 2s with uniform speed. Finally, it travels a distance 3s with uniform retardation and comes to rest. If the complete motion, then the ratio of its average velocity to maximum velocity is. ये हुआ? कितना हुआ? 1 2 3 नहीं हुआ, 4। अच्छा देखो 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 देखो। अच्छा, सबने ऐसे ही किया क्या? रेस्ट से चालू हुआ सर, u0 मान लो, और आपका s डिस्टेंस ट्रेवल किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, लेट से a एक्सेलरेशन से। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s। और ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ तो इसकी स्पीड v हो गई होगी, एक्सीलरेट कर रहा है ना लगातार। फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी इसकी स्पीड v ही रही होगी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। और कितना डिस्टेंस इसमें ट्रेवल किया? 2s। और फिर रिटार्ड हुआ आपका, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव में आएगी, और फाइनली यहां कहीं पे जाके रेस्ट पे आ गया। और इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3s। ये 3 तरह के मोशन आपको दिखे, ए से बी एक्सीलरेटेड मोशन, बी से सी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, सी से डी रिटार्ड होके चल रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? ये क्लियर है? तो आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में ही गिवन है 6s? यस और नो? जल्दी बोलिए। सही है। टोटल टाइम, क्या टोटल टाइम होगा ए से बी का, बी से सी का, सी से डी? यस सर। सो लेट्स से t1 प्लस t2 प्लस t3, उसको हम बाद में निकालेंगे। अच्छा, अब देखते हैं t1 t2 t3 को हम कैसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालें t1 t2 t3 को? हाँ चलो देखो, सबको v की टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे आएगा ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ना। हाँ ठीक। वैसे इससे करने का कोई मतलब नहीं है, ये ग्राफ से एक लाइन में सॉल्व होता है। ग्राफ से किसी ने किया था इस क्वेश्चन को? एक ने किया था ग्राफ से। अच्छा, बाकी सबने इसी से किया था बिना ग्राफ के? चलो ठीक है, बिना ग्राफ के मैं बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। देखो, फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। सो यू विल गेट, फर्स्ट इक्वेशन से कुछ मिलेगा क्या? हाँ चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है काइनेमेटिक्स में। देखो फर्स्ट इक्वेशन मतलब ए बी का मोशन मैं स्टडी कर रहा हूँ,
सो लेट्स से फाइनल वेलोसिटी v मानी है, मैंने डायग्राम में भी लिखा है. सो यू विल गेट v इज इक्वल टू u विच इज 0, a इंटू t विच इज t1. ठीक है. सो और c से d का मोशन अगर मैं स्टडी करूं तो फाइनल स्पीड आपको 0 क्वेश्चन में दी हुई है, इनिशियल स्पीड वो v ही रहेगी, तो सबको समझ में आया होगा, प्लस at. अच्छा, इसका a और इसका a सेम लिया है क्या? ये वाला a और ये वाला a सेम होगा कि अलग अलग? ये a और यहाँ का रिटार्डेशन का जो a है मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा, ये क्लियर है. मतलब लेट्स से दिस वन इज a1, सो ये a2 लेना पड़ेगा आपको. ठीक है. सो v इज 0, u इज v प्लस a, उसको माइनस a2 बोल दो क्योंकि नेगेटिव में है, इनटू टाइम, टाइम मैंने t3 बोला. सो v विल बी a2 इंटू t3, और v किसके इक्वल आया था? a1 इंटू t1 के इक्वल भी आया था. ठीक है. सो ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, शायद इसका यूज आगे हो सकता है. ठीक है. अच्छा, चलिए अब टाइम डालते हैं. सो यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी एज 6s अपॉन t1. t1 मतलब a से b का टाइम, a से b का टाइम. अगर आपको ध्यान से इक्वेशन दिख रही होंगी स्क्रीन पे, सो v बाय a1 दिखेगा आपको, प्लस t2. t2 मतलब b से c का टाइम, वो तो डायरेक्ट आ जाएगा. टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है. सो टाइम आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड. सही है. सो दैट विल बी 2s अपॉन v. ठीक. प्लस प्लस कितना आपका? t3 यहां से आपको दिख रहा होगा v बाय a2. ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, और उसका रेशियो आपसे पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी से. सो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी, क्या v ही होगी मैक्सिमम? हाँ या ना में बताओ. ध्यान से क्वेश्चन समझना. रेस्ट से स्टार्ट हुआ, लगातार एक्सीलरेट किया, तो ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम होगी, जिसको मैंने v डायग्राम में बनाया है. फिर कांस्टेंट स्पीड से चला, मतलब v ही रही पूरे मोशन में, और फिर रिटार्ड हुआ मतलब v से कम हो गई. क्या मैक्सिमम v ही दिखेगी आपको? बिल्कुल. सो आपको जो रेशियो पूछा है वो पूछा है एवरेज का और v मैक्स का. सो दैट विल बी 6s अपॉन v बाय a1 प्लस 2s बाय v प्लस v बाय a2 अपॉन 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 v मैक्स. v मैक्स इज v. सर ये तो कुछ मिल ही नहीं रहा है यहां से. अच्छा, अब यहां से मैं कैसे करूंगा सोल्व? अब ध्यान से सुनना. अगर मैं यहां से सोल्व करूं, हाँ, क्या मैं ए बी के लिए एक इक्वेशन और बना सकता हूं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as? बिल्कुल सर. v इज v, u इज 0, 2 a इज a1 एंड s इज योर s. वो क्वेश्चन में s दिया है आपको. सो यहां से आपका a1 आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2s. ये मुझे लगता है सबको आ गया होगा. तो a1 यहां से आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2s. बोलो, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब शायद अब आंसर आ जाएगा. यहां तक क्लियर हुआ? बोलो. सिमिलरली सी से डी के लिए मैं एक और इक्वेशन खुद से बना सकता हूं, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. बिल्कुल सर. वी स्क्वायर कितना है? 0. फाइनल स्पीड 0 है. यू कितना बन जाएगा? v का स्क्वायर. 2a मैंने माइनस a2 लिया क्योंकि नेगेटिव है. s क्वेश्चन में 3s दिया हुआ है, तो यहां से a2 आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 6s. बोलो, ये भी समझ में आया? a2 की वैल्यू भी समझ में आई? अब आंसर आ जाएगा आपका. सो दैट विल बी v स्क्वायर अपॉन 6s. ठीक. अब ध्यान से सुनो, अब सिंप्लीफाई करो. सो दैट बिकम्स 6s अपॉन v कैंसिल, दैट इज 2s बाय v, 2s बाय v, 4s बाय v, एक v कैंसिल, 6s बाय v, 4s बाय v प्लस 6s बाय v, दैट इज 10s बाय v. ठीक. अपॉन v. अरे ये क्या हो गया? ये तो चला ही जा रहा है. सो दैट इज 6sv अपॉन 10sv. बेसिक मैथ. सो दैट इज 3/5. यही दिया है क्या आंसर? ऑप्शन सी. क्लियर? इतना बड़ा करने की जरूरत क्या थी? अरे 18th क्लियर तुम्हारे मेथड से, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग इसी से करते हैं. बहुत ही कम लोग इसको ग्राफ से करते हैं. पता ग्राफ से एक लाइन में आंसर आएगा. कैसे? वीटी ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, और समझने की कोशिश करना कि वीटी ग्राफ ऐसा क्यों बना. हाँ बता रहा हूँ, ग्राफ से बता रहा हूँ. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में बना रहा हूँ, और समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों बना. पहले तो मैं बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि क्यों बना. देखते हैं कितनों को अपने आप समझ में आएगा. एक हिंट देता हूँ. पार्टिकल रेस्ट से चालू हुआ,
क्वेश्चन में मेंशन मतलब t0 पे v0 था, लगातार एक्सेलरेट किया, लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो vt में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा अकॉर्डिंग टू v इक्वल टू u प्लस at, सबको पता है। तो आपका पूरे मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखते हैं कितनों को समझ में आया। समझा क्या? वीटी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समझा? देखो मैं बताता हूँ जिसको नहीं समझ में आया, ये मैंने लेफ्ट साइड में जो पॉइंट्स बनाए ABCD, उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ बनाता हूँ। ये ए है, रेस्ट से चालू हुआ, लगातार एक्सीलरेट किया, मतलब वीटी में स्ट्रेट लाइन ग्राफ वी पे पहुंच गया, फिर बी से सी कांस्टेंट स्पीड क्वेश्चन में गिवन है तो वी कांस्टेंट हो गया, सी से डी अगेन रिटार्ड हुआ और फाइनली वी जीरो हो गया, रेस्ट पे आ गया। तो ये और सीडी लाइन मैंने बड़ी क्यों बनाई पता है? क्योंकि ये एरिया ज्यादा दिखेगा आपको। ये भी क्लियर हुआ क्या किसी को? ये वाला जो एरिया है A1 ये छोटा होगा एज कंपेयर टू A3। क्यों? कोई क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में गिवन है कि लास्ट में 3s डिस्प्लेसमेंट किया और स्टार्टिंग में s डिस्प्लेसमेंट किया, तो ऑब्वियसली एरिया बड़ा मैंने लिया है। अरे इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? ठीक। अब आपसे क्या पूछा देखो, वापस आओ क्वेश्चन पे। सो यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी। लेट्स से दिस वेलोसिटी इज वी मैक्स बोल देते, चलो इसका नामकरण ही कर देते हैं वी मैक्स। ठीक, अच्छा हाँ, तो आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी का रेशियो बताओ भाई वी मैक्स के साथ। वी मैक्स तो मैंने वी मैक्स ही माना है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब ध्यान से सुनो, पर इससे भी इजी नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा था इजी होगा, इससे भी कैलकुलेशन आएंगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट सर एरिया अंडर वीटी ग्राफ, सो वो हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। लेट्स से दिस टाइम इज t1। ये जिसने भी किया एक ही ने किया था पूरी क्लास में, कैलकुलेशन हो रही है ना इससे भी। प्लस ये वाला एरिया वो होगा आपका एरिया अंडर द ग्राफ, वो होगा रेक्टेंगल दिख रहा है ना, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ इससे भी कैलकुलेशन होगी, इजी नहीं पड़ रहा है इससे भी। लेट्स से दिस टाइम इज t2, दिस इज t1, सो ब्रेड्थ आपको मतलब लेंथ आपको t2 दिखेगी और लेंथ ये ब्रेड्थ आपको v मैक्स दिखाई देगी। प्लस फिर से आपको ट्रायंगल दिखेगा तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सो बेस आपका लेट्स से टाइम t3 है, सो बेस विल बी t3, हाइट विल बी v मैक्स अपॉन v मैक्स। अच्छा हाँ, एक टाइम भी आएगा नीचे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। कैलकुलेशन है इससे भी अगेन। ठीक है, v मैक्स v मैक्स v मैक्स v मैक्स कॉमन आके आपका कैंसिल, सो यू विल गेट t1 बाई 2 प्लस t2 प्लस t3 बाई 2 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। दिस इज रिक्वायर्ड रेशियो। ये क्लियर हुआ क्या? ये क्या किया मैंने? ये क्लियर हुआ? ऊपर क्या निकाला है मैंने? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3, उसको नीचे लिख दिया, और अपॉन वी मैक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो आया आपका वी मैक्स कैंसिल हो गया। अब शायद इजी नहीं, अभी भी इजी कहां से होगा ये? अभी भी टू कॉमन भी अगर आएगा तो आपका आएगा t1 प्लस टू t2 प्लस t3, कैंसिल ही नहीं होगा ऊपर नीचे, अब आपको वापस वैल्यू डालनी पड़ेगी। हाँ तो फिर इससे भी कुछ इजी नहीं हो रहा है। हाँ कुछ क्वेश्चंस में इजी हो जाता है ग्राफ से, इसलिए मैं बोला था ग्राफ से ट्राई किया करो ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, पर ठीक है इसमें उतना ही टाइम लग रहा है जितना इसमें लग रहा है। बोलो दोनों मेथड क्लियर है? अब आगे इसके आगे खुद प्रोसीड कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट अब आगे लेफ्ट साइड वाले जैसा ही है। दोनों मेथड क्लियर है सबको? जल्दी बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 and 20. Question number 19 is the a projectile is given an initial velocity I cap plus 2j cap, मतलब x में कितनी है 1 और y में कितनी है 2। The Cartesian equation of the path is, ये कितना होगा? हुआ ये भी होना चाहिए। हुआ? चल वेरी गुड।
So u vector is basically initial velocity is I cap plus 2j cap. तो आपसे पूछा था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज, इसके पाथ का कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें याद हो कार्टेशियन इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें दो तीन चीजें चाहिए, अगर वो मिल गई तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे? x कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा होता है, वो 1 दिख रहा है आपको, और y कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा होता है, वो 2 दिख रहा है आपको। दोनों का रेशियो ले लो। सो tan थीटा आपको 2 दिख रहा है, और ट्रायंगल अगर आप कंप्लीट करें tan थीटा 2 का मतलब ये 2 ये 1, सो पाइथागोरस से ये होगा √5। सो cos थीटा आपको दिखाई देगा 1/√5। ऐसा क्यों किया? अब आगे यूज होगा इसका। सो इक्वेशन आ गई आपकी। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा, रेशियो से डायरेक्टली मिल गया 2 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। इनिशियल स्पीड का मैग्नीट्यूड जल्दी बोलो कितना है? I प्लस 2j है। मैग्नीट्यूड कितना है इनिशियल स्पीड का? आता है सबको मैग्नीट्यूड? √5, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू cos स्क्वायर थीटा, पाइथागोरस से आ गया था 1/5। सो 5 कैंसिल, सो दैट इज y इज इक्वल टू 2x माइनस जी की वैल्यू 10 डाल दो, 10/2 5x स्क्वायर। अब जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है बोलो। क्लियर? क्लियर? अच्छा, क्या तुम्हें एक फॉर्म याद है? यहाँ पे इस स्लाइड में है नहीं, वो दूसरे डॉक्यूमेंट में है। किसका रूट? किसका रूट? अच्छा, तुम्हें ये एक फॉर्म याद है? ये मैंने करवाई थी 1/√5 कोस स्क्वायर लगा है ना, कोस स्क्वायर तो 1/5 होगा ना। तुम्हें ये इक्वेशन याद है? y इज इक्वल टू, मैंने ये इक्वेशन भी लिखवाई थी, uy/ux tan थीटा, मतलब uy/ux इंटू एक्स, अगर तुम्हें याद हो, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ux का स्क्वायर। ये याद है फॉर्म? ये मैंने इसलिए लिखवाई थी कि टाइम पढ़ने पे काम आ जाएगी। देखो इसमें जल्दी हो जाएगा। uy डायरेक्टली 2, ux 1, खत्म सवाल। ux 1 का स्क्वायर 1, खत्म। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 10/2 5x स्क्वायर। तो वही मैं बोल रहा हूं, अगर आपने ध्यान से लेक्चर्स सुने हो, ध्यान से आपने चीजें समझी हैं, डाउट्स क्लियर किए हैं, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस। Next, question number 20. A graph between the square of velocity of a particle and the distance moved is shown in the figure. The acceleration of the particle in kilometer per hour is. कर लोगे? करवाना है तो बोलो, नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूं। कर लोगे? नहीं करवाना? बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन करना है? अच्छा, तुमने कभी ये सुना एक्सेलरेशन होता है आपका dv/dt, और ये भी होता है vdv/dx? सुना है? यस। अच्छा, v स्क्वायर और s में आप इक्वेशन बना ही सकते हो ना। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सो y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप बनेगी। तो y एक्सिस पे कौन है? v स्क्वायर। m स्लोप, स्लोप अगर आप स्लोप को ध्यान से देखें तो स्लोप आपको दिख रहा होगा नेगेटिव में, पहली बात। और कितना दिख रहा होगा? y अपॉन x, ये सबको स्लोप आता होगा निकालना। तो 4600 माइनस 900 मतलब 3700 अपॉन x, ये जो टाइम है ये 0.6, मतलब ये सॉरी डिस्टेंस, ये 0.6 दिख रहा होगा आपको। सो दिस इज स्लोप। सो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स एक्सिस पे कौन है? s प्लस c इंटरसेप्ट, वो मुझे नहीं पता है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। बोले इतनी चीज क्लियर है? मतलब आपकी इक्वेशन आ गई v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3700 अपॉन 0.6 इंटू s, y इज इक्वल टू m x प्लस c। यहां तक क्लियर है? इतना अजीब कैलकुलेशन क्यों दिया उसने? बोल, यहां तक क्लियर है? यस। अब c निकालने के लिए बचपन में चलो आप 9th-10th में याद करो, c मतलब इंटरसेप्ट। तो किसी भी एक पॉइंट को लाई करवा दो वहां पे। कौन से पॉइंट को लाई करवा दो? जब v स्क्वायर 4600 है तब s 0 है। हाँ सर, समझ में आ रहा है? तो जब v स्क्वायर 4600 है तब s 0 है, इसको 0 डाल दो, v स्क्वायर को 4600,
तो सी किसके इक्वल आ गया 4600। इतना सब आता है कि नहीं? ये तो शायद 9th-10th में ही पढ़ते हो। ये आता है, पॉइंट पुट करके सी की वैल्यू निकालना आता है ना ये सब। So your equation will be v square is equal to minus 37,000 by 6 into s plus c which is 4600। अब आगे मुझे लगता है आप आराम से कर सकते हो। कर लोगे इसके बाद? a is equal to v dv by ds। जिसने पूछा था कर लोगे इसके बाद? इक्वेशन मिल गई ना अब आपको, अब आगे तो सोल्व कर ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। A bus starts from rest moving with acceleration 2. A cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously towards the bus at 20. After what time he will be able to overtake the bus? ये भी रिलेटिव मोशन से एक लाइन में होगा। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये शायद रिपीट भी हुआ होगा ऐसे क्वेश्चन। 21 में किसी को डाउट है या आता है? जल्दी बोलिए। 21 किसी को पूछना है तो बोलो। 22 ये एकदम हमने क्लास में किया था। जल्दी बोलो 21 22 ये पूछना है किसी को, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है तो आज ही कंप्लीट करना है। किसी को पूछना है, नहीं पूछना है तो नहीं लिखो 21 22 में से। और मुझे लगता है 23 भी आप कर लेंगे, सब एक जैसे हैं। जल्दी बोलिए 21 22 23 में से किसी को कुछ भी पूछना है तो बताइए। कुछ नहीं पूछना? ठीक, किसी को भी पूछना है तो बता देना, डरना नहीं। 24 23 पूछना है, ठीक है बताता हूँ। 24 तो मुझे लग रहा है सीधा इक्वेशन से ही है, वो भी हो गया होगा 24। हो गया। 22 में मैंने 9.6 लिखा, सही हो जाएगा, मैं करवा दूंगा सही। फाइनल में अगर आप 9.6 लिखते हो 9.60 लिखते हो सब एक ही बात होती है। ठीक है, वैसे ट्राई किया करो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर दिया करो, ये ट्राई किया करो ऐसे। 23 is the equation of motion of a projectile is y is equal to 12x minus 3/4x square। सर ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी टाइप का है, मुझे दिख रहा है। तो आपसे पूछा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब ux आपको कितना दिया हुआ है 3, तो रेंज ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टाइल इज, रेंज आपसे पूछिए। अच्छा, क्या रेंज निकालने के लिए y को 0 डाल दे? जल्दी बोलो। रेंज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन पूरे मोशन में, तो y में तो होती नहीं है, क्या y को 0 डाल दें? जल्दी बोलिए। So on putting y 0 you will get 12x minus 3/4x square as 0. So you will get 12x is equal to 3/4x square। एक x कैंसिल, 3 से गया आपका 4, तो x will be 16 मीटर। ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। किसी को गलती पता है इसमें? अच्छा, यही डाउट था क्या जिन्होंने 23 पूछा कि सर हमारा 16 आ रहा है? कोई गलती है इसमें? आंसर 16 सही है। सिक्सटीन सही है। 21.60 दिया है इसने तो। रुको एक मिनट, अगर मैं इसको x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से कंपेयर करूं, 21.6 दिया है, ठीक है। अभी एक मिनट देखते हैं। हाँ देखो, कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3/4 है इधर, तो जी मतलब 10 अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब यूएक्स का होल स्क्वायर।
रुको रुको रुको, मैं वही बोला कुछ तो गलती है इसमें। ये 3/4 होना चाहिए, ये क्लियर हुआ क्या? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमारा बेसिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन में है वो 3/4 होना चाहिए इस इक्वेशन से कंपेयर करने पे, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस यस। अच्छा, 2 से गया 5 और ux आपको क्वेश्चन में दिया है, ux क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3, सो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 5/9। ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा है आपका, जल्दी बोलिए, ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा है। क्या इक्वल आना चाहिए था? मतलब g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्या ये 3/4 के इक्वल आना चाहिए था? आना चाहिए था, पर आ ही नहीं रहा है। जब आप g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, आपको 5/9 मिलती है वो वैल्यू, पर क्वेश्चन में वो 3/4 दी हुई है, मैच ही नहीं कर रहा है। कोई मुझे बता सकता है क्या गड़बड़ है इसमें? कोई मुझे बता सकता है क्या गलती है इसमें? अच्छा 25 भी हो गया क्या? 25 तो मुझे लगता है कोई डाउट ही नहीं होगा किसी को। 25 डाउट है, मतलब 23 ही बचा है ना आपका? एक ही डाउट बचा है। हाँ, 10 थीटा 12 लेके आता है वो ठीक है, वो अभी करेंगे, उस पर बात करेंगे अभी उस पर। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि पूरी क्लास मुझे बस ये बता दो कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है आपका जनरल इक्वेशन में विच इज g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वो डेटा जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग वो आ रहा है आपका 5/9, पर क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है, जो इक्वेशन दिया है उसमें वो दिया हुआ है 3/4। मैच ही नहीं कर रहा है, पर करना चाहिए मैच, क्यों नहीं कर रहा है? कोई मुझे बस ये बता दो। आज तो 2 मिनट बचा, आज शायद ये नहीं हो पाएगा, ये कल होगा, ठीक है? तब भी मतलब 2 मिनट बचा है तो मुझे बस ये बता दो कि ये मैच क्यों नहीं कर रहा है। हमेशा तो करता था सर, हमने जितने क्वेश्चन किए या इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन थे सब में मैच करता था, बल्कि हमने मैच करके ही आंसर निकाले हैं। अब बोली तुम्हारे फुल मार्क्स है ना शायद फिजिक्स में? हाँ तो बताओ, तुम ही बताओ, चलो तुमको मौका दिया जा रहा है। एक्स स्क्वायर का ये जो कोएफिशिएंट हमारा है, क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया होगा आपको, g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वेयर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होल स्क्वायर। वो वैल्यू क्वेश्चन में ही आपको दी हुई थी 3, तो जब मैंने वो सोल्व किया वो 5/9 आया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, पर मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है उसमें 3/4 है। मैच क्यों नहीं कर रहा है? जल्दी बोलो, 2 मिनट है, 2 मिनट भी नहीं बचा है। या किसी और को समझ में आ रहा है तो बताओ, मैच क्यों नहीं कर रहा है? हाँ बोलो बोलो, जो बोलो। बोलो, कौन बोलना चाह रहा है, बोलो। करेक्ट आंसर क्या होगा कल बात करेंगे इस पे, अभी तो 30 सेकंड ही बचा। किसी को आंसर मिला ये मैच क्यों नहीं कर रहा है? वैल्यू ऑफ g विल नॉट बी 10 इन दिस क्वेश्चन। ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्या उससे? जी 9.8 लेके सोल्व कर लो, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे भी गलत ही आएगा। चलो 8 की सेकंड बचा, कल इस पे बात करते हैं, कल मैं बताऊंगा ये गलत क्यों आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। और आज